ہم نے تاریکی کے اتنے دور دیکھے ہیں کہ روشنی کی کرن کہیں سے بھی آئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، پہلے وہ دیکھ لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آج کی جیت ہم نام کرتے ہیں ان سب پیرنٹس کی جو اپنی بیٹیوں کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اب ٹائم ہے لڑکوں کے میچ کا۔ پاکستان زندہ باد! آپ نے سنا ہماری بچیوں کو بھارت میں کھیل رہی ہیں، اور جب سب کو انتظار تھا کلکتہ سے خوشخبری آنے کا، تو خوشخبری آئی دہلی سے، اور وہاں سے ہماری جو بچیاں کھیلنے گئی ہوئی ہیں ویمن ورلڈ کپ، انہوں نے کہا کہ وہ انہیں ناز ہے ان والدین پر جو اپنی بچیوں کو کرکٹ کھیلنے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اچھا، اس میں جو خبر آئی وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے تھرو نہیں آئی، جس کے پاس تمام حقوق ہیں موجودہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ایئرنگ رائٹس اس کے، آج وہ جھلکیاں دکھاتے رہا، اس لیے کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا یار عورتوں کی لڑکیوں کی ٹیم ہے، مطلب کیا فضول میں وقت ضائع کرنا، اصل کام تو کلکتہ میں ہو رہا ہے۔ تو مزے کی بات ہے کہ کلکتہ تو کلکتہ میں ہی رہ گیا اور دلی کا فیروز شاہ کوٹلہ جو ہے وہ یہاں آ گیا۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ قومی خزانے سے پی ٹی وی کو خطیر رقم کے عوض یہ رائٹس ملے، کوئی مفت میں تو ملتے نہیں ہیں، اور یہ پبلک کے لیے ہے، یعنی یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ تو ہے نہیں، بالکل، لیکن انہوں نے یہ کام دکھایا، اور یہ وہی پی ٹی وی ہے جو آپ کو یاد ہوگا 1976 میں مونٹریال اولمپکس ہوئے تھے، نادیہ کمنیچیو یاد ہے؟ نادیہ کمنیچیو جمناسٹک کوئین، گھر گھر جو نام ہوا وہ پی ٹی وی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ویمن سنگل ڈبل ومبلڈن جو ہے وہ ہمیشہ یہ دکھاتے تھے پی ٹی وی۔ ان بیچاریوں نے، بلکہ بیچاری نہیں، یہ تو اب فاتح ہیں، انہوں نے کوئی یہ اپنی پرفارمنس دکھائی، اور اس کے باوجود یہ کوریج سے محروم رہی، صرف اس لیے کہ لڑکیوں کی ٹیم ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی۔ میں اگر آپ کو 2-3 مثالیں دوں ان میں سے، تو آپ جو ہیں حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کتنی ان لڑکیوں نے محنت کی ہے۔ مثلا 2 لڑکیاں تھیں، شیزا اور شرمین، 1995 میں انہوں نے ویمن کرکٹ کنٹرول ایسوسی ایشن پرائیویٹلی اس کی بنیاد رکھی، اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتی تھیں، لڑکیاں ڈھونڈتی تھیں جو کہ کرکٹ کو کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ ہوں، اور مردوں کے فقرے سہنے کے باوجود گراؤنڈ تک جا سکیں۔ اس کے بعد مستقل ناکامیوں کا ایک دور ہے، پھر یہ آئی سی سی کا حصہ بن گئی، پھر جناب 2009 میں اصل میں گولڈن پیریڈ شروع ہوا پاکستان ویمن ہاکی کا، ثنا میر کپتان بنی، اور اس کے بعد ان کی قیادت میں 2009 کے سڈنی ورلڈ کپ میں اچھی خاصی پرفارمنس کا مظاہرہ، کہ پھر 2010 کا جو ایشین گیمز تھے اور 2014 کے، اس میں گولڈ میڈل لڑکیاں لے کے آئیں، اور کلکتہ میں کی طرف ساری توانائیاں تھیں، وہ ہار گئے اور یہ جیت گئے۔ اور کپتان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ویمن کرکٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یار یہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے، کرکٹ ورکٹ قسم کا تعلق شاہد آفریدی۔ اچھا، اچھی بات یہ کہ شاہد آفریدی چونکہ ریٹائر ہونے والے ہیں، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو ثنا میر ہے اس کو کپتان نہ بنا دیا جائے دونوں ٹیموں، کم از کم کوئی تو کامیابی ہوگی۔ اور شاہد آفریدی کو کھانا پکانے میں بھی اس کے لیے کوئی بل شل پاس کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آج شاعری کا عالمی دن بھی ہے، بالکل ہے، تو جب امید بندھی ہے تو میں نے سوچا کہ فیض صاحب کی ایک نظم ہے جو کہ اگر پڑھ دوں تو پڑھ دیں۔ جگر دریدہ ہوں، چاہ کے جگر کی بات سنو، علم رسیدہ ہوں، دامان تر کی بات سنو، زباں بریدہ ہوں، حرف گلو سے حرف کرو، شکستہ پا ہوں، ملال سفر کی بات سنو، مسافر رہے صحرائے ظلمت شب سے، اب التفات نگاہ سحر کی بات سنو، سحر کی بات، امید سحر کی بات سنو۔ ہمارے سامنے امید آ رہی ہے، کتنے عرصے سہا ہے ہمارے ملک کی خواتین نے، فیصد ہے، ہم سب کو پتہ ہے، بات بھی کرتے ہیں، اور یہ نظم سنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم کی فتح کو سیلیبریٹ کیا جائے، بلکہ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس شروع ہوا جس میں 2 ایسے بل ہیں جو شاید اس ملک میں اگر وقت پر آ جاتے تو بہت سی ہماری
बेटियों बहनों की इस्मतें और जाने दोनों बच सकती थीं। पहला बिल है एंटी रेप बिल। इस बिल में ये कहा गया है कि जनाब रेप की इन्वेस्टिगेशन हमेशा डिफेक्टिव होती है और यही कहा जाता है कि जनाब इन्वेस्टिगेटर एंड में कहते हैं या तो उन्हें गवाह नहीं मिले या कोई ऐसे साबित नहीं हो सकता, पर्चा हल्का कर दिया। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर जो भी रेप की इन्वेस्टिगेशन जो है सही नहीं करेगा उसको भी सज़ा मिलेगी और वो सज़ा 3 साल तक हो सकती है और जुर्माने के साथ या दोनों। बिल्कुल। और मीडिया के लिए भी जाहिर है आपने सुना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम भी इस पे बात करते हैं कि किसी भी रेप विक्टिम की निशानदही, उसका नाम जाहिर करना बहुत ही बड़ा एक क्राइम है, क्योंकि जैसे हमारे माशरा है, अगर किसी भी लड़की का हम ऐसी लड़की का नाम जाहिर करते हैं तो यकीनन माशरे में उसके बाद उसके साथ क्या होता है हम सब जानते हैं। और देखिए ये भी है माशरे में जो होता है वो अपनी जगह, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म अगर है ये कि अगर एक लड़की है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, रेप हुआ है, तो फिर आप उसको इस तरह उसकी शक्ल और टीवी में तो अक्सर मैंने देखा है कि एक्चुअली शक्ल और नाम दोनों तो अगर ये कानून तो ये तो ऐसा है ना कि आप फिर दोबारा यू आर कमिटिंग अ क्राइम, दोबारा इट इज अनदर रेप। जैसा कि उम्मीद है कि कानून मंजूर हो जाएगा, अगर ये कानून मंजूर हो गया तो कोई भी अखबार या चैनल बिल्कुल किसी विक्टिम का अगर नाम देता है तो जो जिम्मेदार होगा उसे कितनी है सजा? मैक्सिमम 3 साल 3 साल तक सजा होगी और जुर्माना होगा। तो मेरे मीडिया के बहनों और भाइयों, ब्रेकिंग न्यूज़ के दीवानों, ज़रा 1 मिनट ठहर के ये कानून ज़रूर पढ़ लेना। इसी हफ्ते इसकी उम्मीद है कि जो पार्लियामेंट है जॉइंट सेशन वो इसकी मंजूरी देगा। और उसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं रेप के बारे में, जिसमें जो पब्लिक सर्वेंट्स यानी सरकारी मुलाजमीन का किरदार होता है, जिसमें पुलिस सरे फहरिस्त है। पुलिस आपको पता है कि रेप विक्टिम्स के साथ क्या सलूक होता है, तो इसमें यह भी है कि पुलिस वाले को भी सज़ा मिलेगी। अच्छा जनाब, जिस हस्पताल में वो मुआयने के लिए जाती है, अगर उसके साथ कुछ ज़्यादती होती है तो उस हस्पताल का जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी भुगतेगा। उसके अलावा अगर किसी भी मैनेजमेंट लेवल पर किसी खातून रेप विक्टिम की बात नहीं मानी जाती या उसके साथ मज़ीद ज़्यादती की जाती है तो उस पर भी सज़ा है। उसके अलावा जो है ये भी कहा गया है कि जी जो मेडिको लीगल ऑफिसर एग्ज़ामिन करता है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो क्राइम छुपाया जाता है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट में होता है और उसमें अगर कोई गलत साबित होती है तो उसके लिए भी सज़ा है। और तो इससे अगर इसकी मैं समरी बताऊं तो वो ये है कि सरकारी एहलकार से मुराद ये कि पुलिस वाले, मेडिकल स्टाफ और दफ्तर वाले, सरकारी दफातर वाले, अगर वो रेप में मुलव्विस पाए जाते हैं तो उन्हें 25 साल उम्र कैद से लेके सजाए मौत तक दी जा सकती है, जो कि पहले इससे पहले कानून नहीं था। और ये है बेसिकली अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को चेक बिल्कुल ये है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि अफसोस से बहुत दफ़ा इस तरह के केसेस आए हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही बात कि रेप के बाद रेप विक्टिम ज्यादा गैर महफूज बिल्कुल। और ये तो मतलब एग्जिस्टिंग रेप विक्टिम के बारे में भी नहीं है ये, मतलब ये नहीं है कि आप रेप केस में गए पुलिस स्टेशन और फिर आपके ऊपर दोबारा तशद्दुद हुआ, ये अगर उठते के साथ भी हुआ तो यू आर देन liable to life imprisonment या death sentence। और एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूं, रेप के फिगर्स जो हैं बहुत ही अलार्मिंग है। सिर्फ फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, जिसको हम बहुत पीसफुल और अमन व अमान के हवाले से बेहतर समझते हैं, 103 ख़वातीन का रेप हुआ है गुज़िश्ता 5 साल में वहाँ पर, और उसमें से एक भी एक भी शख्स को सज़ा नहीं मिली। बिल्कुल। और यही होता है, दोबारा इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल दोबारा गवाहों का गायब हो जाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, और दूसरा जो है दूसरा बिल आया है एंटी ऑनर किलिंग, यानी गैरत के नाम पर कत्ल, जिसको शायद हमारा माशरा ये समझता है कि गैरत के नाम पर जो है कुछ भी कर सकते हैं, इश्तिहाल में आकर के फूलों के हार पहनाए जाते हैं। हाँ, लोग रिहा होकर के आते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि क्योंकि मुल्ज़िमान पहले ये आड़ ले लेते थे कि जनाब मैंने तो फिट ऑफ रेज में कर दिया, मैंने गुस्से में आकर के कर दिया, उससे बहुत
اب پروٹیکشن ملے گی کمپاؤنڈیبل، یعنی 302 جو ہے ڈائریکٹ لگے گی، اور یہ پلی یہ کہنا کہ میں نے غصے میں کیا اور میں اس لمحے بہت زیادہ طیش میں آ گیا، تو یہ اب قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب تک تو یہ تھا نا کہ 304 کے تحت وہ 7 سال بھگتنے کے بعد بچ جاتا تھا یا اس سے پہلے بھی نکل آتا تھا، لیکن اب یہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے یہ ڈائریکٹ 302 کا سوچا سمجھا جو قتل ہے اس کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، اور سزائے موت اور عمر قید جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اور اس میں بھی اگر تھوڑے سے ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں تو جو گزشتہ 2 سال کے سٹیٹسٹکس ہیں، 1500 سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ 2012 کا ذرا پیچھے چلے جائیں 705 تھی، 2011 میں 557 تھی، اور اس کے ساتھ تو میری جو بات ہوئی ہے غیر سرکاری اداروں سے بھی جو ان سب کی نوٹ کرتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دن بدن بڑھ رہا تھا، اور ظاہر ہے ہم نے سنا انٹیریئر سندھ میں کاروکاری کے نام پر، کے پی میں بہت ہوتا ہے، کوہستان ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہے، اور یہ پلی لے لی جاتی ہے کہ کیونکہ مارنے والا فیملی کا ہی حصہ ہوتا ہے تو وارث جو ہے کیونکہ وہی وارث ہوتا ہے لہٰذا وہی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب جو ہے اس سارے بل کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، ہم بات کریں گے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور نوٹڈ ماہر قانون بھی ہیں، جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ فردن پہلے ایک بل پہ ان سے رائے لے لیں پھر دوسرے بل۔ طارق محمود صاحب ویلکم ٹو دا شو، مجھے بتائیے کہ یہ جو اینٹی آنر کلنگ بل ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، اور اینٹی ریپ بل کہ کیا یہ معاشرے میں واقعی وہ تبدیلی لائے گا جس کے لیے ہم اتنے عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ کو کہیں سے ابتدا تو کرنی تھی نا۔ بالکل، اگر آپ پہلے جو قانون کو دیکھیں جس کا بھی ذکر بھی کیا کہ پہلے ایک ہوتا تھا 304، جی کہا یہ جاتا تھا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ گریو اینڈ سڈن پرووکیشن کے طور پر کیا ہے، یعنی کہ جس وقت میرا ذہن جو بالکل معاوف تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کر رہا ہوں اور دوسرے کی میں نے جان لے لی، لیکن بعد میں یہ 304 کو تو ختم کر دیا گیا، اب یہاں پر 302 سی آیا، اور سی میں یہ کہا گیا، یہ ایک قسم کا رائٹ اور پرائیویٹ ڈیفنس میں بھی آتا ہے، سڈن پرووکیشن میں بھی، اور اس میں جو سزا ہے وہ لکھا ہوا تھا ٹو دی ایکسٹینٹ آف 25 ایئرز۔ اب یہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف 25 ایئرز بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ عدالت کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا کہ چونکہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف 25 ایئرز ہے تو وہ کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں جو کہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہو۔ تو دیکھیں یہ جو آپ نے کیا نا، اس میں مسائل بہت ہیں۔ دیکھیں یہ جو قانون آیا اس کی ایک منشا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی فرد آتا تھا وہ کہتا تھا جی میں نے اپنی بہن کو، یعنی کہ ایسے واقعات ہوئے، میں کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، ایسے واقعات ہوئے کہ ایک بھائی نے یہ لیا کہ میں نے اپنی بہن کو کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد میں نے اس کو مار دیا، بلکہ ایک واقعہ تو ایسا بھی آیا کہ ایسے ایویڈنس آئی کہ اگر جس بہن کی تم بات کر رہے ہو وہ تو پہلے سے بھی، اب مجھے زیادہ بات کہنی نہیں چاہیے، ایسی بات ہے، تو اس نے پھر ڈیفنس یہ لیا کہ یہ تھا تو صحیح، لیکن چونکہ اس وقت مجھے کسی نے آ کے کہا کہ میں نے تمہاری بہن کو اس کے ساتھ دیکھا تو میری غارت جاگ گئی۔ اس میں سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جو وکٹم ہوتا ہے وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہوتا، وہ اس کو نگیٹ کرنے کے لیے آ نہیں سکتا، اور آپ ایک فرد کے جو ہے بیان پر جو ہے اس کو جو ہے دوسرے کو کنڈیم کریں۔ بات یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس کو سزا نہیں دے رہے اس جرم کی جو کہ انسان کی جان لیتا ہے، بلکہ انڈائریکٹلی آپ اس خاتون کو جو ہے کنڈیم کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کسی کام میں انوالو تھی بغیر اس کو رائٹ آف ہیئرنگ دیے ہوئے، کیونکہ وہ تو اس دنیا میں چلی گئی۔ تو دیکھیں آپ نے کہیں سے ابتدا تو کی، یہ یقیناً ایک ہمارے یہاں جیسے بلوچستان میں سیاہ کاری ہے، کہیں یہ کاروکاری ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن جب تک آپ کو قانون نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک نتیجے بہتر نہیں آئیں گے۔ تو یہ قانون بنا ہے، اب یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے پھر جا کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پر آتی ہے
कि वो इसको तफ्तीश करे। अब कम से कम कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैंने अपनी बहन को या अपनी बेटी को किसी के साथ देखा ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन में या अदरवाइज और मुझे एक राइट मिल गया। और अब जस्टिस तारिक महमूद साहब थोड़ा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद जो दूसरा बिल है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। पिछले सेगमेंट में आपने सुना, तस्करा हो रहा था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है जिसमें कई बिल पेश हुए हैं। उनमें से 2 बिल जो ख़वातीन के हिसाब में ख़ासे अहम है, एक तो गैरत के नाम पे कत्ल और दूसरा रेप से मुताल्लिक़ है। गैरत के नाम पे कत्ल के बारे में जस्टिस तारिक महमूद साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि अब ये लाजमी 302 का जो केस है उसके तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जिसमें उम्र कैद से लेके सज़ाए मौत तक हो सकती है। पहले ऐसा नहीं था, कत्ल गैर इरादी भी आ जाता था कि मैंने जज्बाती होकर कत्ल कर दिया। दूसरा जो तारीख साज बिल है, जो कि उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये दोनों बिल मंजूर हो जाएंगे, वो है रेप के बारे में, जिसकी तफसीलात जो हैं मुबशिर ज़ैदी ने पिछले सेगमेंट में बताई थी। तो जस्टिस तारिक साहब ये बताइए कि अब जो पाबंद किया गया है पुलिस वालों को, सरकारी एहलकारों को, अस्पताल के अमले को, कि एक तो रेप विक्टिम के साथ क़यामत टूटी पहले और उसके बाद क़यामतों पे क़यामतें इन जगहों पे टूटती रहती हैं, उनको कंटेन करने के लिए कि अगर विक्टिम के साथ ज़्यादती हुई तो जो भी है सज़ा होगी, और अगर दोबारा कहीं थाने में या कहीं अस्पताल में या दफ्तर में रेप होता है तो फिर वही उम्र कैद से लेके सज़ाए मौत तक मिलेगी। सज़ाए मौत पहले होती थी गैंग रेप के केसेस में, लेकिन अब ये इंडिविजुअल रेप्स के केसेस तक बढ़ा दी गई है। तो क्या देखते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है सिर्फ रेप की हद तक ही महदूद नहीं होगा। आप थोड़ी देर के लिए प्रिज्यूम कीजिए कि किसी खातून को किसी केस में अरेस्ट किया गया और वो कस्टडी में ले ली गई, किसी भी केस में, चोरी के या कोई और भी किसी में, और वो पुलिस स्टेशन में चली गई और मान लीजिए वहां पर उसके साथ ऐसी कोई कार्रवाई हो गई, और ये कोई कहानी मैं नहीं सुना रहा, ऐसा होता रहा है, तो फिर वहां पर ये इसमें लॉजिक ये है, विजडम ये है कि देखें आपका जो पुलिस स्टेशन है या इवन फॉर दैट मैटर हॉस्पिटल की बात भी आती है, बात केसेस में डॉक्टर्स पर भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाकया इल्जाम लगे। तो बात बड़ी सीधी सी है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं और वहां पर एक ऐसी कस्टडी में आई हैं जो कि सरकार का एक वो इदारा है, और वहां पर आपने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करके अगर इस किस्म का काम किया तो वो जो नॉर्मल सर्कमस्टांस में सजा है वो उससे आपको बढ़ के सजा मिलेगी। और इसमें एक लॉजिक है, एक विजडम है, क्योंकि देखें ना, फिर तो कोई चीज जो है इसमें कोई भी जो है वो इससे महफूज नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये बात भी, ये जो इस तरफ हम की डायरेक्शन है, ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। कम से कम हमने वो पहला कदम तो उठाया, क्योंकि जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे, देखें जो एतराज करने वाले तो ये कहेंगे कि बाद में क्यों, भाई बाद में जो होगा बात की बात है, लेकिन कम से कम आपने एक बुनियाद रखी, वहां से आपने एक सफर का आगाज किया। तो मैं समझता हूँ क्योंकि ऐसे वाकये आते रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल मेरा भी है जस्टिस साहब, ये एक मुझे 218 ए की तरफ अगर हम एक सेकंड तवज्जो करें, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम यही देखते हैं कि कन्विक्शन रेट रेप के केसेस में 1% है या शायद उससे भी कम है, तो और अक्सर हम यही सुनते हैं कि ये इसलिए है कि इन्वेस्टिगेशन में ही इतनी लकूने हैं, इतनी खामियां हैं। तो ये जो सज़ा लगाई है कि इफ पुलिस पब्लिक सर्वेंट फेल्स टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली और डिलीजेंटली, तो उनके ऊपर भी सजा होगी अप टू 3 years विद फाइन। ये कैसे डिटरमिन किया जाएगा आपकी नजर में कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी, गफलत हो रही है? बहुत आसान सी बात है, देखे ना, अब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खातून जो है पुलिस स्टेशन में आती है और वो आके कहती है कि मेरे साथ ये वारदात हुई है, ठीक है ना जी, तो पहला काम जो पुलिस को फौरी तौर पर करना है FIR रजिस्टर्ड करने के साथ ही कि उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल में लेके जाएं और हॉस्पिटल में जाके उसका मुआयना कराएं। और अगर आप फौरी तौर पर उसका मुआयना नहीं कराते और कुछ ऐसा गुजर जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो साइंसी तौर पर आपको एविडेंस अवेलेबल होनी थी, तो वो जो है आपको अवेलेबल नहीं हुई और ये डिफेक्टिंग इन्वेस्टिगेशन में आ गया। ये पहली मर्तबा कानून नहीं आया,
एंटी टेररिज्म लॉ को अगर पढ़ें तो उसमें भी इस किस्म की प्रोविजन मौजूद थी और ऐसी ही सजा थी। तो मेरा कहना का मतलब कि इस वक्त टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से जो पॉसिबल एविडेंस इकट्ठी हो सकती है, अगर आप फौरी तौर पर कलेक्ट नहीं करते तो अल्टीमेटली ये बात जो है बड़ी आसानी से साबित की जा सकती है कि भाई आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया। और इसलिए ये जो कदम है ये भी एक लिहाज से पॉजिटिव कदम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने खासी तफसील से बता दिया। कुछ चीज़ें रह गई हैं कि ये दोनों बिल जो हैं ये साबिक वज़ीर आबदा हुसैन की ज़ादी हैं जो कि खातून पार्लियामेंट है, सुगरा इमाम, उन्होंने पेश किए हैं। और इन बिलों को इस मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास में टेबल करने की वजह ये थी कि हमारी कौमी असम्बली ने इन दोनों बिलों को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया था और इनको पास नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से अब ये मुश्तरका इजलास में आए हैं। तो ये भी एक सोच की गमाज़ी करता है कि किस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट की सोच है वो क्या थी और अब क्या हो रही है। चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जाएंगे तो अब पता है सबसे बड़ा मसला एक ये है ना, अभी जस्टिस साहब ने बात की बहुत पसंद आई कि कहीं से तो आपने आगाज करना है। अच्छा मुझे क्योंकि हमेशा यही बात होती है, अगर कोई आप कर लें, एक सेकंड मैं अपनी एक अच्छी बात कर लूँ उसके बाद फिर आप बदमज़ी कर लें बेशक, ठीक है। हमेशा यही बात होती है कि जी आपने ये बना लिया, अब क्या होना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो सर अगर नहीं करेंगे तो फिर तो कोई चांस ही नहीं, कहीं से तो हमने सिरा पर चढ़ना है। इसके अंदर भी लूप होल ढूंढे जाएंगे, उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा। लेकिन मैं इसी तरफ आ रहा था कि खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ जो पंजाब असम्बली का बिल है, आपने देखा कि उसके खिलाफ 77 की तहरीक चलाने का, ठीक है, नहीं होना। जस्टिस साहब ने बात की अब तो साइंटिफिक तरीके हैं, प्रूव हो सकता है, ठीक है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब, उन्होंने कहा जी डीएनए को तो हम मानते ही नहीं है, डीएनए टेस्ट को, शहादतें जो हैं उन्हें मानते हैं। तो जब खवातीन पे तशद्दुद के बिल पे इतनी उछल कूद हो गई तो अब ये जो दोनों बिल हैं, क्या ये स्मूथली, मेरा इंटरेस्ट है कि स्मूथली पार्लियामेंट में पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मेरा ख्याल है हो जाएंगे, क्योंकि देखें ये जो 77 की तहरीक और ये और वो और फलाना टीरा, सर कितनी सीटें हैं ब्लॉक का? अच्छा, मेरी एक बात, सर बात का दारोमदारी है, नहीं आप भोले आदमी है ना सर, अब मतलब सड़कें गलियां मसाजिद, तो बिल वहां पे तो नहीं पास होना। मेंबर पार्लियामेंट क्या करते हैं, वहां पे बिल पास होगा, घेराव, कोई घेराव नहीं होने वाला है। अच्छी बात की सर, छोड़ दे। अगर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी डीएनए को नहीं मानती तो पार्लियामेंट अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डीएनए को नहीं मान रहा है। जब खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल हुआ, सुन लें आप मेरी बात हुई है वहाँ हुकूमत से, और ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जनाब वो जो है पीछे हट गए हैं और मौलवी हजरात के प्रेशर में आ गए हैं, तो मेरी कल ही बात हुई सीएम हाउस में और उन्होंने कहा कि जनाब आप कह सकते हैं कि हमारा कोई इसमें जो है पीछे हटने का इरादा नहीं है। नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगी। पहला सेंटर मुल्तान में बन रहा है जहाँ से स्टार्ट लेंगे, और सदर्न पंजाब बिकॉज उनका ये ख्याल है कि वहाँ ज़्यादा वो है तो फर्स्ट वहाँ फोकस करेंगे और फिर सेंटर में आएंगे। आई अंडरस्टैंड, जब शुरू में हमने बात की ना कि तारीकी इतनी हो गई है कि हम ज़रा सी भी उम्मीद आए ना तो हम उसमें से वो निकल, लेकिन डर जाते हैं। स्ट्रीट पावर है नहीं है, ये अपनी जगह है भी सही, तो इस काम के ऊपर इस्तेमाल नहीं होगी मेरी नज़र में। मैक्सिमम क्या होगा, हाँ मैक्सिमम क्या होगा, किसी को कोई डीजल, मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। नहीं सर, आप बात कंप्लीट तो कर दे देना है सर, क्योंकि अब मैं भोलेपन से थोड़ा हटके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी के मुंह में कोई डीजल कोटा मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा, इस तरह की बात ये बात नहीं है। लेकिन देखो पहला सवाल ये आएगा कि भाई साहब ये दोनों बिल जो है नजरियाती काउंसिल ने वेट तो नहीं किए, तो सर वेट करना लीगली क्या होगा नहीं है ना यार, ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना, तो सर आप क्या कह रहे हैं कि क्या सारे मसाजिद से वो क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट का घेराव कर देंगे, आइडियोलॉजी नहीं होना है के नाम पर कत्ल और रेप की हिमायत करेगी, तो फिर ऐसी काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी से बेहतर है कि हम जो है नहीं वो अपनी जगह। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, मैं आई अंडरस्टैंड, अपनी जगह हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो उन्होंने बात की तारिक महमूद ने कि भाई कहीं से स्टार्ट करना ना, हम एक डेटरेंट तो रख लेना है। समझना चाह रहा हूँ साहब, आपका ख्याल है कि शायद कोई मैस मूवमेंट, मैस मोबिलाइजेशन, घेराव ये होगा, क्या होगा? मसला नहीं है कि हमें खुश जरूर रहना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो हैं जो साथ साथ चलेंगे, 100% चलेंगे, और ब्रेक भी फिर साथ साथ ही, ब्रेक भी आ गई है। चलो ब्रेक में हम बात करते हैं इस पर मज़ीद।
वेलकम बैक जी, और आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, क्योंकि आज ट्विटर की 10वीं सालगिरह है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा अपना जी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट, ज़रार ट्विटर, यस। तो अब इसी मौके की खुशी में पाकिस्तान में एक ट्विटर ट्रेंड चला है, द बेस्ट ऑफ पाकिस्तानी ट्विटर, जिसमें पाकिस्तान की ट्विटर अवाम, यानी मेरी इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, ये आपकी ही सिलेक्शन है, तो आप मुझे प्लीज़ ब्लेम ना करें, ने वो ट्वीट्स पुरानी अपनी तिजोरी में से निकाल के दोबारा ट्वीट किए हैं जो बकौल उनके द बेस्ट ऑफ पाकिस्तानी ट्वीट्स हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ट्विटर है तो जाहिर है कि क्रिकेट के बारे में बहुत बातें होती हैं और क्रिकेटर्स के साथ भी बहुत बातें होती हैं। तो हम शुरू करते हैं मोहम्मद हफीज़ से। जुलाई 2014 में मोहम्मद हफीज़ साहब ने कहा कि जी मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहा हूं, तो किसी ने जो भी चीज़ पूछनी है वो बिल्कुल पूछ ले। एक साहब ने कहा कि जी मेरी गर्लफ्रेंड आपसे बात करना चाह रही है, आप प्लीज़ 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 उनसे बात कर लें, जिसके जवाब में मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि वो आपकी गर्लफ्रेंड रहे? ठीक है, ठीक, ओके। सो नेक्स्ट है ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी साहब। अब शाहिद अफरीदी साहब के साथ हमारी कुछ लव हेट रिलेशनशिप है, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं और चाहने वालियाँ भी बहुत हैं। तो एक ऐसी खातून ने उनको कहा कि शाहिद अफरीदी साहब मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे प्लीज़ एक लॉन्ग ड्राइव पर तो ले जाएं। और शाहिद अफरीदी साहब ने बहुत ही उनका दिल तोड़ दिया और कह दिया कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो मेट्रो बस ले लें। ठीक है, बिल्कुल, क्या रोमांटिक जवाब, क्या रोमांटिक जवाब है यार, मतलब छक्का मार दिया। आप समझ लें। पॉलिटिशियंस भी हमारी बहुत क्रिकेट के शौकीन हैं, और मेरा ख्याल है कि ये 27 फरवरी की बात, 26 फरवरी की बात है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की धुलाई हो रही थी एशिया कप में बहुत बुरी धुलाई हो रही थी। शर्मिला फारूकी साहिबा इतनी तंग आ गई कि कराची इलेक्ट्रिक को ट्वीट करके कहा कि यार आज आप कोई लोड शेडिंग नहीं कर सकते, हमें कुछ रिलीफ चाहिए इस मैच से। और जवाब में कराची इलेक्ट्रिक वाले भी बड़े तेज हैं, करंट मार दिया और कहा कि जी अगर बिजली बचानी है तो सबसे बेहतरीन तरकीब है कि टीवी ही बंद कर दें। और मेरा ख्याल है कि हम सबके ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत बिल्कुल अच्छी थिंग है। अब माय पर्सनल फेवरेट पाकिस्तानी ट्विटर मोमेंट है जब मुबशिर लुकमान साहब ने ट्वीट किया था कि जूलियन असांज सही कह रहे थे जब उन्होंने मुझे सालों बाद कहा था कि MQM को भारत से पैसा मिलता है। बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन क्या हुआ कि जूलियन असांज जो विकीलीक्स के बानी है, तो विकीलीक्स के ऑफिशियल अकाउंट से जवाब आता है कि जी मिस्टर असांज ने किसी ऐसे कोई बात कभी भी नहीं की, खासतौर पे लेकिन इसमें तो बहुत से पाकिस्तानी एंकर्स फंस जाएंगे सर, लेकिन वो विकीलीक्स को टैग नहीं किया ना सर, यही तो मसला है ना सर। विकीलीक्स वाले तेज हैं। देखिए उर्दू के टॉक शो में आप जो भी कहते हैं अंग्रेजी के ट्विटर पे ना कहें, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, जंगल में मौत वगैरह वगैरह। और फिर अगेन ये भी एक बहुत ही मकबूल ट्वीट है शेख रशीद अहमद की धरना डेज। 28 अक्टूबर 2014 पर शायद शेख रशीद अहमद ने ट्वीट की थी कि मैं 2 घंटों में नवाज शरीफ का इस्तीफा लेकर आऊंगा। कितने घंटे हो गए हो सकता है? 2000 घंटे तो हो ही गए हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं आया। चलें कोई बात नहीं। काउंटिंग डाउन टू द लास्ट 2, 10 सितंबर 2014 को रेहाम खान से सवाल किया गया कि मैम डोंट माइंड, लेकिन अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा होती तो हम आपको इमरान खान के लिए पसंद करते, जिसके जवाब में रेहाम खान साहिबा ने कहा शुक्र बच गई। शादी से पहले शादी के बाद भी यही कह रही हैं, शादी से पहले की है ना, देखिए 2014 की है ना, सितंबर 2014 की। 2016 में भी एप्लीकेबल होती है। आपने शादी की बात की तो लास्ट बट नेवर लीस्ट खान साहब की भी लेजेंडरी एक ट्वीट थी 31 दिसंबर 2014 in the style of Mark Twain, the reports of my marriage are greatly exaggerated। फिर जब शादी हो गई थी तो ये इतना पॉपुलर जुमला हो गया कि इसका बकायदा एक हैशटैग। ये शादी से पहले की थी? सर शादी से पहले की है, शादी से पहले की है सर। शादी के बाद कौन शादी के बाद कौन ट्वीट, मैं करता हूँ, लेकिन वो और बात है, मेरे 15 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा लेकिन सब मजाकिया नहीं है, एक और भी ट्वीट है जिससे एक आइडिया आपको मिल जाता है कि ट्विटर एक्टिविज्म या ट्विटर का एक और इस्तेमाल भी कैसे हो सकता है। और ये है बिस्मा महमूद की एक ट्वीट थी, अब पता नहीं हमारे पास वो है या नहीं है, लेकिन हाँ ये एक सना एजाज ने ट्वीट की, एक तस्वीर ट्वीट की कि एक चील बिजली के तार में फंसी हुई है। ये ट्वीट की
कराची इलेक्ट्रिक तक ये ट्वीट पहुंची, फिर कराची इलेक्ट्रिक ने वहां पर जवाब दिया कि जी हमने अपनी टीम भेज दी है, और एक तस्वीरों का सिलसिला चला और एक खबरों का सिलसिला भी चला, और ट्वीट देखकर बाकायदा अपनी टीम भेजी, चील को बचा लिया, एनिमल शेल्टर भेजा। और मुझे एक चीज बता ये दो, select ये किसने की? ट्विटर बेस्ट ट्वीट सिलेक्ट किसने की? बिकॉज मतलब एक एग्जांपल है। प्रोग्राम का आपने टाइम इतनी भी खत्म अच्छी हो रहा है ट्वीट्स पढ़ी हैं कि जहाज में आपको इनाम मिले। Thank you यार। सर ये फारिग ये टाइम मैं आपको दिखा ये बाद में कर लेंगे, सुन लें आप। अच्छा सुन रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जो लोग देख रहे हैं, जाहिर है उनको ट्विटर ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, क्योंकि और कौन सी पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना, ये बताएं ना, आप फंसे तो सही से फंसे, बताएं। सर ट्विटर ट्रेंड सिंपल है, आप एक हैशटैग बनाते हैं। अच्छा। अगर आपने किसी चीज को प्रमोट करना है या किसी चीज बात की को तरफ- लंबा कर दो, सिर्फ 10 सेकंड हाँ रह मैं गए यही हैं। कर रहा हूँ। किसी चीज पर अटेंशन बन गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाय इलेक्शन हो रही है NA 146 की, जितने लोग उस हैशटैग को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आखिरकार वो पाकिस्तान की ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाएगी। अब इसके 2 नंबर तरीके भी हैं वो क्या है कि आप बैठ के कोई 50-60 फेक अकाउंट्स बना लें, आप खुद ही ट्वीट करें और फिर उन फेक अकाउंट से रीट्वीट करते रहें। इस तरह बहुत ये लोग- कौन करता है? इस तरह एक नाम बहुत लोग- बताएं। इस तरह बहुत एक लोग, नाम बताएं सर मैं आज। नहीं नाम नहीं, लूंगा, नहीं, मैं नहीं इनकार कर रहा आप मुतमईन हो गए ना इनके जवाब से? अच्छा, ट्विटर के बारे में यही है कि जैसे वो नहीं होता था आप ट्विटर अकाउंट क्लोज कर दे, मैं प्रोग्राम का अकाउंट इस वक्त क्लोज कर रहा हूँ। कल मुलाकात होगी, अब इजाजत दे दीजिए, खुदा हाफिज।